أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic, that is capital budgeting techniques. And before we getting into that, we should know about the capital and budgeting separately. Capital sarmaya, which you invest in your business, or and budgeting is the preparation of something like uh, purchase budget, sale budget. Okay, you plan something. So capital budgeting is the process of evaluating and selecting long-term investments that are consistent with the firm's goals uh, of maximizing the owner's wealth. This is the objective which we have studied at the first, that what is the prime objective of the firm is to increase the wealth of the shareholders who are the owner of the company. So here, what we are doing is that we are defining the capital budgeting, and capital budgeting is the process, और ये वो process है जिसके अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट में, किस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उन्होंने हिस्सा लेना है, ताकि और जब उसके उसके अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, किसी प्रोजेक्ट के अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट जो है वो क्या करेगा, फर्म को ग्रो करेगा in terms of profits, and ultimately it will increase the shareholders wealth. जितना प्रोजेक्ट स्ट्रांग होगा, फर्म स्ट्रांग होगी, फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, ऑनर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी in the shape of share prices as well, in the shape of profitability as well. So the good project always bring good wealth. So long term projects, मकसद होता है किसी भी कारोबार का कि वो लॉन्ग टर्म काम करे, और उसके अंदर ये होता है कि वी डू सम एक्सपेंडिचर, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं फर्म की तरफ से, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, किसी बड़े एसेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है. क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल किए जा सकें. द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन 1 year. So that is the first objective here, that we do this capital expenditure. These are the outlays of the firm. These are the investment of the firm for the long-term benefits. Long-term benefits, and the greater the benefits, the greater the firm value. The greater the firm value, the more the wealth of the shareholder. On the other hand, there are expenditure which are the operating in nature, and expenditure जो डेली बेसिस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, द डेली नीड्स ऑफ द फर्म, उसको पूरा करने के लिए, और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होते हैं. एंड दैट प्रिसाइसली विद इन 1 year, अगर हम इसको प्रिसाइसली एक लिमिट लगा के बात करें, तो 1 साल के अंदर अंदर जो बेनिफिट्स हम लोग ले लेते हैं इन एक्सपेंडिचर से, दे कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू विद इन 1 year. और इनके लिए हम लोग जो है वो बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे अपने पास लिखते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी हम करते हैं. अब आपको इफ यू आर familiar with the accounting, a part of these expenditure are used in the profit and loss statement because of the matching principle as well. सो इनकी वेयर एंड टेयर भी चलती रहेगी, तो ये एक्सपेंडिचर हमारे होते तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और हम इन्हें लॉन्ग टर्म नेचर के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल करने के लिए करते हैं. देर आर 5 स्टेप ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. कैपिटल बजटिंग बेसिकली आप सरमाए की बजटिंग जो करते हैं, और इसके अंदर तो ये अगर हम इसको आराम से इजीली डिफाइन करें, तो इट in capital budgeting, you select long-term investment projects. So for the capital budgeting process, there are 5 steps mainly. First of all, it will very, very much help you in your project, in your entrepreneur project. Basically, it helps the young entrepreneurs
It's for the organization, well established organization, but these steps you can use for your startups as well. So if you are going to invest in a long term project, in a business, in a new business, you can follow the same steps as well. So the firm, when they are making a decision for investing in a new investment project, they start by doing this simple 5 steps process, and they started to select the best project for their uh, company, to increase the shareholder wealth. The first step is the proposal generation. First, you have to come up with the proposals of the new investment projects, and at all level of within the business organization, and are reviewed by the finance personnel. First of all, you have to, when you are going for the investment projects, these projects should be reviewed by the finance personnel. Why? Because they are the ones who are going to arrange the funds for these projects, whether these projects are feasible or not. अ, जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे, हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह फाइनेंस पर्सनल डिसाइड करते हैं, और बजट को किस तरह हम लोग देखते हैं, उसके उसको उसमें से बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है, वी हैव शॉर्ट ऑफ फंड्स, सो वी गो फॉर दोज प्रोजेक्ट्स विच आर अकॉर्डिंग टू ओवर फंड्स, और उन फंडिंग के अंदर भी हमें बेनिफिट्स को प्रोवाइड करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। So first step is to, you have to prepare a proposal of your project, and your finance personnel should review these projects. Second, review and analysis. Financial managers perform फॉर्मल रिव्यू, फाइनेंस पर्सनल उनको एक ओवरव्यू कर लेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर्स उसको देखेंगे और एनालाइज करेंगे मेरिट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. This is very important because sometimes there are many options, many investment proposals there, and financial manager has to review each and every one of them and analyze these projects, assess the merits of these projects. So they review and analyze these projects. Third step is decision making process. Firm typically delegate capital expenditure decision making on the basis of the dollar limit, how much limit they have, how much budget they have. That's why firms need financial personnel and financial managers at first 2 steps of the proposal stage, because they are the one who are going to advise on the budget limits, dollar limits, that is decision making process के बाद, that is the implementation 4 step. Following approvals, expenditures को देखते हुए और made जो भी expenditures किए जाएं, projects implemented projects को implement कर दिया जाता है, और expenditures for the large project often occurs in phases. मतलब वो है कि जी financial manager जो है that वो फिर काम पे लग जाते हैं फंड्स इकट्ठे करने में। उसमें अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, देन कैपिटल जो है, कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट की राइट साइड पे अगर आप देखें तो लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी होता है। दे कैन इशू मोर शेयर्स एंड इंक्रीज इक्विटी, और दे कैन गो फॉर मोर डेट, और उधार ले सकते हैं, और बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी, वो जो पॉलिसी उनकी होगी, और दैट इज अनदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पर यहाँ पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए वो जो है वो अप्रूवल करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट हों तो उसको, उसके फाइनेंसेस जो हैं, उसके एक्सपेंडिचर जो हैं वो फेजेस में किए जाते हैं। Then after implementation, there is a follow-up. There is a rigorous follow-up. Results are monitored, and actual costs and benefits are compared with those that are expected. जो actual cost and benefits जो हैं वो uh, देखे जाते हैं इसमें, और results को monitor किया जाता है। Action may be required if actual outcomes differ from the projected one. आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मोस्टली देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, बजटेड कॉस्टिंग, फिर हम लोग एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। ये तो कॉस्टिंग की बात कर ली ना। वैसे अगर हम लोग जब प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें भी हम लोग रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं, और वी सेट आवर स्टैंडर्ड्स। इफ आवर रिजल्ट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू दोज स्टैंडर्ड्स, वी follow up and we take actions, either to achieve those standards or to revisit our whole plan.
सो यहाँ पर ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है फॉलो अप में किए जाते हैं। सो देर अब आ जाते हैं हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कैपिटल बजटिंग, और उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब इसमें इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के नाम से आपको डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए दैट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स आपस में इनके कैश फ्लोज लिंक नहीं होते, मतलब एक की सिलेक्शन और रिजेक्शन दूसरे की सिलेक्शन और रिजेक्शन की वजह नहीं बनती। So independent projects are projects whose cash flows are unrelated of one another. The acceptance of one does not eliminate the other from the further consideration. मतलब एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड इट इज वाइस वर्सा, दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, दोनों प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें एक सिलेक्शन दूसरे के रिजेक्शन की वजह बनती है। The selection, acceptance, and rejection of one project affects the selection and rejection of another project. So the projects that compete with one another, simple, so that the acceptance of one eliminates from further consideration of all other projects and serve a similar function. ठीक है, तो इसमें we can say that the mutually exclusive projects are competing each other, independent projects are independent of each other. So when we talk about capital budgeting techniques और उससे पहले basic terminology की बात करें, so sometimes company has unlimited funds. That means if all the projects are feasible, all the independent projects are feasible and profitable for the business, business can select all of the projects जो shareholder wealth को बढ़ा सकते हैं. So is a financial situation whose firm is able to accept all independent projects that provide an acceptable returns. And in capital rationing that is limited budget, if the firm with a limited budget तो उसमें एक financial situation बयान की जाती है इनमें, uh, उसमें क्या किया जाता है, firm has only a fixed number of dollars available for capital expenditure so that उसमें फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। देखा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है फर्म को, और उसकी बेस के ऊपर उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, दूसरे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। So there is various situation in which we select to reject the project. In capital rationing, we have financial constraints in which we need a limit on the amount to spend as a capital expenditure. So एक्सेप्ट रिजेक्ट वर्सेस रैंकिंग अप्रोच, यहाँ पर हम हर एक का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरफ है, अनलिमिटेड फंड और कैपिटल रेशनिंग टेक्निक्स की तरफ है। नाउ कमिंग टुवर्ड द एक्सेप्ट रिजेक्ट वर्सेस रैंकिंग अप्रोच, इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच इज द इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल टू डिटरमिन वेदर दे मीट्स द फर्म्स मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, उस क्राइटेरिया पे जो प्रोजेक्ट आ जाता है, सेट हो जाता है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रैंकिंग अप्रोच में ये होता है कि इज द रैंकिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमिन्ड मेजर सच एज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न की बेस के ऊपर क्या कर दिया जाता है, उनको रैंक असाइन कर दिए जाते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, और उस बेस पे फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है। जो सबसे ऊपर होते हैं प्रोजेक्ट रैंक के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया कर दिया जाता है, नीचे वालों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। So when we proceed ahead, we need to go through some examples. So इसमें Bench company is a medium-sized metal fabricator that is currently contemplating two projects. मतलब वो दो projects के दरमियान जो है वो decision लेना चाह रही है, और दो project में project A requires an initial investment of 42,000 and project B an initial investment of 45,000. Relevant operating cash flows for the two projects are presented। टेबल आगे दिया हुआ है, ये टेबल जी आपको दिया हुआ है। इसके अंदर जो डिफरेंस आता है हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, आप लोगों ने भी फील किया होगा। तो सबसे पहले जब हम
किसी भी प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर एक सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी आउटले होती है। ठीक है, दिस इज द आउटले। ठीक है, और ये जो बाकी सारी चीजें हैं, दीज आर द इनफ्लोज। ठीक है, इनको आउटफ्लोज भी कहते हैं, कैश आउटफ्लोज। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको ये माइनस में होती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव होती है, मतलब इन ये इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो ये मिलेगा 5 सालों में। और प्रोजेक्ट बी में जब आप 45,000 इन्वेस्ट करेंगे, 45,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपको 5 सालों में जो है वो ये रिटर्न आपको मिलेगा। पहले साल आपको 28,000 मिलेगा, दूसरे साल 12,000, फिर 10,000, 10,000। दीज आर द टू प्रोजेक्ट्स, और इन दो प्रोजेक्ट्स बेनेट जो है इसके ऊपर कंटेम्पलेटिंग कर रही है। एंड दिस सो ये जो आपके सामने इमेज नजर आ रही है, दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वी ओनली कवर दिस। ठीक है, हमने सिर्फ इस पार्ट को कवर किया मोस्टली, और इस पार्ट को हमने ऐसा कवर नहीं किया। और दिस इज द माइनस फर्स्ट कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट के ऊपर आपने पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद आपको ये क्या हो रहे हैं, ये इन्फ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने पैसा लगाया प्रोजेक्ट बी पे, आपकी तरफ से पैसा कम हो रहा है, और अगले 5 सालों में आपको प्रोजेक्ट बी में ये जो है रिटर्न हो रहे हैं। इफ यू कैन सी दैट देयर इज दिस कैश फ्लो इज एनओडी। ठीक है, ये आपके पास एनओडी की शक्ल में है, एंड दिस इज इन शेप ऑफ मिक्स्ड। ठीक है, तो इन दोनों शक्लों में प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद है। सबसे पहली जो हमारे पास टेक्निक आती है, दैट इज जो आज जिस पे फोकस करेंगे, दैट इज पे बैक पीरियड। बहुत ही सिंपल है। आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से मैं एक प्रोजेक्ट में 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा सिंपल मेथड ये होगा कि ये 10,000 मैं रिकवर कब तक कर लूँ। ठीक है, आप एक कहते हो मैंने ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, इसमें मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इसमें से 10,000 3 महीनों में रिकवर हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर प्रोजेक्ट ये 3 महीने से पहले मुझे रिटर्न दे देता है, मेरे 10,000 वापस कर देता है, तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट ये जो है वो 3 महीने से बढ़ जाता है और अभी तक मेरी अमाउंट जो है वो वापस नहीं आती, 10,000 की जो मैंने इन्वेस्ट की है, तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा ये इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। So the payback period, payback method is the amount of time required for a firm to recover its initial investment in a project as calculated from cash inflow। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की है वो कब तक इसकी रिकवर हो जाएगी, ये मेथड सिर्फ सिंपल ये मेथड ये बता देता है आपको। तो डिसीजन क्राइटेरिया है कि क्या करते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ मैक्सिमम एक्सेप्टेंस पे बैक पीरियड इज डिटरमिन्ड बाय द मैनेजमेंट। कहती है कि 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में हमें रिकवर हो जाना चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। If the payback period is less than the maximum acceptable payback period, accept the project. If the payback period is greater than the maximum acceptable payback period, then you should reject the project। तो ये आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन जो है वो कर सकते हैं। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट पेबैक पीरियड ऑफ बेनेट कंपनी। उसमें दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए जिसमें एनओटी आ रहा है, और प्रोजेक्ट बी जो है जिसमें मिक्स स्ट्रीम आ रहा है। तो प्रोजेक्ट ए की चूंकि एनओटी है, इसमें सिंपल जो इनिशियल आउटले है आपके पास, ठीक है, इनिशियल आउटले जो है वो आपके पास 42,000 है, 42,000 है, 42,000 जो है, और हर साल जो आपको इनकम मिल रही है दैट इज 4,000। तो 42 को 42,000 को 14,000 पे डिवाइड किया, सिंपली 3 सालों के अंदर अंदर जो है प्रोजेक्ट ए में आप जो है वो रिकवरी कर लेंगे। मसला वहाँ आता है जब मिक्स स्ट्रीम होती है। ठीक है, मिक्स स्ट्रीम में अब आपके पास एक प्रोजेक्ट भी है जिसमें 42,000, 45,000 आप पहले पे कर रहे हो, तो आपके मिक्स स्ट्रीम कैश इन्फो है, तो कैलकुलेशन आपने क्या करना है, ईयर 1 में फर्म ने कितने 28,000 रिकवर कर दिए। ठीक है, 45,000 में से अभी बाकी रकम बाकी है। ईयर 2 में फर्म ने
जो है 40,000, मतलब 28,000 प्लस 12,000, सेकेंड ईयर में 12,000, तो 40,000 सेकेंड ईयर में जो है वो रिकवर कर लेता है। जो ईयर 3 है उसमें ये बढ़ जाता है, मतलब 40,000 है, तो ईयर 3 में जो रिकवरी है वो 10,000 की है, तो टोटल जो रिकवरी है वो 50,000 की है। तो इसका मतलब है 45,000 से ये इंक्रीज करके, जब 45,000 से इंक्रीज करके, तो आप हमें अंदाजा लगाना है। हम अंदाजा कैसे लगाएंगे? जो हमें तीसरे साल रिकवरी हो रही है वो हो रही है 10,000, $10,000। अब ये $10,000 पूरा का पूरा तो नहीं, हमारा 45, इसमें से हमारा हाफ यूज हो रहा है, तो ओनली 50% ऑफ ईयर 3 कैश इन्फो, मतलब 10,000 का जो था उसमें से 50% जो है वो चाहिए था 45,000 को पूरा करने का। मतलब 10,000 से तो 50,000 हो रहा है ना, लेकिन हमने पे बैक पीरियड निकालना, पे बैक पीरियड के लिए हमें 45,000 पूरे करने की जरूरत है। तो तीसरे साल जब हमें 10,000 रिसीव हो रहा है, उसमें से हमें कितना चाहिए? सिर्फ 5,000 चाहिए। तो 5,000 को हमने डिवाइड किया कितने पे? 10,000 पे, तो हमारे पास जो आया 0.50, दैट मीन्स 50% जो है उससे रकम तीसरे साल के अमाउंट की, टोटल अमाउंट की, तीसरे साल के 10,000 का 50% अगर हम ले लें तो हमारा जो है वो काम बन जाएगा, और 50,000 5,000 आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या निकालना है? हमने यहाँ पे पे बैक पीरियड निकालना है, ठीक है। तो एक साल का 50% तो 0.5 आ जाएगा, तो 2.5 सालों में आप जो है, लेट से 2 सालों में तो आपने 40,000 रिकवर किए, तीसरे साल में आपने 10,000 रिकवर करना है, ठीक है। तो तीसरे साल में आपने सॉरी 5,000 रिकवर करना है, तो आपको 45,000 हो जाएगा। टोटल जो तीसरे साल में रकम है जो आपको रिसीव होनी है वो होनी है 10,000 रुपये। तो 5,000 जितनी हमें रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाई 10,000, तो आपका जो टाइम लगेगा वो 50% ऑफ द डेज, ठीक है, 0.50, ठीक है। तो 1 ईयर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से, तो 0.5 आ जाएगा, 2.5 ईयर्स आपके पास जो है ये बन जाएगा। बहरहाल इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम फ्यूचर में कर लेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी तक आप इसका कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट, ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कितने अरसे में अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेते हो। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो अगर आप देखें 14,000, 14,000, 28,000, 28,000 एंड 14,000, तो आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट जो है 14,000 के अंदर दोबारा, तो ये आपका 3 सालों के लगभग जो है ये आपका रिकवर हो जाता है, मतलब 42,000 पे। तीसरे साल जब आप ये प्लस करते हैं तो ये किधर आ जाता है? 42,000 पे आ जाता है। पूरे 3 साल लगते हैं आपको ये रिकवर करने, ठीक है। पहले साल आपका 28,000 रिकवर होता है, दूसरे साल आपका जो है अगर टोटल करें तो 40,000 आपका रिकवर होता है, ठीक है। तीसरे साल आपका जो है कितना रिकवर होता है आपका? 50,000। अब 50,000 तो आपका रिकवर हो गया, बट आपने जो है 45,000 रिकवर कर, ठीक है। मतलब आपको कितना रिक्वायर्ड है? आपको 5,000 और रिक्वायर्ड है, ठीक है। 5,000 और रिक्वायर्ड है, और तीसरे साल हमें कितना रिकवर, हमें कितनी अमाउंट मिल रही है? 10,000 में से सिर्फ आपको 5,000 रिक्वायर्ड है, तो कितना टाइम लगेगा? और ये जो 10,000 आपको मिलना है, ये 10,000 आपको पूरे एक साल में मिलना है, इन 1 ईयर, ठीक है। इन 1 ईयर आपको पूरा 10,000 मिल रहा है, तो 5,000 आपको कितने अरसे में मिलेगा? सिंपल, 1 ईयर है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 में ऐड करेंगे 5,000 जो आपको रिक्वायर्ड है रकम 45,000 को पूरा करने के लिए, डिवाइड बाय जो उस साल में पूरी कंप्लीट रकम आपको मिल रही है, 10,000 आपको मिल रही है, इसमें आपने 10,000 को क्या कर देना? डिवाइड कर, जितनी रकम आपको चाहिए अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि 40,000 आपने दूसरे साल तक रिकवर कर, यहाँ तक आपके पास 2 ईयर्स तो आ गए, ठीक है, 2 ईयर्स तो आ गए। अब आपने जो है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, मैं वो क्लियर कर दूं। 2 ईयर्स तक आपने 2 साल कंप्लीट, 2 सालों की कंप्लीट आपने जो है आपको पैसे रिकवर होंगे, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। 2 साल से आगे तीसरे साल में जाके
तीसरे साल के दरमियान में जाके आपकी रिकवरी हो रही है। मतलब तीसरे साल अगर पूरा तीसरा साल कंप्लीट करें, पूरा तीसरा साल कंप्लीट करें तो आपको 10,000 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए 5,000। ठीक है, आपको कितने चाहिए? मजीद 5,000 चाहिए ताकि आप कितना कर सके, 45,000 कर सके। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 5,000 जितना आपको अमाउंट चाहिए डिवाइड बाय जितना आपको नेक्स्ट ईयर टोटल अमाउंट रिसीव होगी, 10,000 ये करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो 2.5 ईयर्स में ये जो है आप 3 सालों में रिकवरी कर रहे हो, और ये आप 2.5 ईयर्स में रिकवरी कर रहे हो। अगर हम देखें दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करें, देन वी कैन सजेस्ट दैट वी आर सेलेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। मतलब 2.5 ईयर्स में जिसमें हम रिकवरी कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इज मोस्ट फिजिबल अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड। ठीक है, इसके अलावा हम और टेक्निक करेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर को कवर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।